Hello students, today in this lecture I will discuss how to write the dimensional formulas of unknown physical quantities. That is, using a basic principle called principle of homogeneity. First of all, we have to identify the unknown physical quantities and then we have to write out its dimensional formula. Okay, so let's start. Now since from this lecture onwards, the numerical section of dimensional analysis it starts. Okay, so today we are going to discuss the very first type. Okay, and that type is to write the dimensional formulas of unknown physical quantities. Okay, note it down. Now sirs, how to write the dimensional formulas of unknown physical quantities? There would be some mathematical relationships between the different physical quantities, and some part is known to us. Why? Because some physical quantities, they are to be mentioned or they will be mentioned in the given relations. Okay, now how to crack such problems? To crack such problems, we have to use principle of homogeneity. Now what is principle of homogeneity? Now since this principle of homogeneity states that, note it down. Remember, again you have to sit with pen and register and you have to note down each and everything from the whiteboard. Okay, along with those important things which I will tell you, that is the most important things which I will dictate, I will beforehand tell you to note them down. Okay, so principle of homogeneity, I am making it statement. I am making it statement. Now what does the state? According to principle of homogeneity, the similar physical quantities can be added or subtracted from each other. Note it down. According to principle of homogeneity, the similar physical quantities can be added or subtracted. Remember, only added or subtracted from each other. Got it? Note it down. Done? Have you copied? Okay. Now, so as in the principle of homogeneity, it is mentioned
that similar physical quantities can be added or subtracted from each other. Okay? Now students, what do you understand by the similar physical quantities? The similar physical quantities are those quantities which have the same dimensional formula or the same units. तो बेटा वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला या तो सेम हो या फिर उनके यूनिट सेम हो, उनको सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. ओके, चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं. नाउ सपोज सिस्टर्स वी हैव टू डू दिस कैलकुलेशन. से 2 kilograms is to be added up with 5 kilograms, then your answer would be 5 into 7. So your answer is 7 kilograms. Okay? Now if we are adding 2 kilogram with 5 kilogram, the answer is 7 kilogram. But what if suppose say I am adding 2 kilogram with 2 meter per second and try to do the calculation. Now, can we do this addition? We get no result. We get no result. Why? Because since in the first term the unit is kilogram and in the second term the unit is meter per second. The units are different. Now if the units are different, then how is it possible to add the different physical quantities? It is not possible for us. So that's why in the second illustration we are not able to do this addition. Okay? 2 kilogram cannot be added to 2 meter per second. Why? Because this 2 kilogram is nothing but the magnitude of mass and this 2 meter per second is the magnitude of speed. We can never do the addition or subtraction of the different physical quantities. Got it? That's why students, we do not get any result in this calculation. But in the first calculation, the body having 2 kilogram mass is added up with another body having 5 kilogram mass. The total mass of the system, it comes out to be 7 kilogram. Okay? This calculation was possible because the addition was done for the two similar physical quantities. Got it? Okay? Okay. Now, similarly, students, or let us suppose say I am wiping it out. Now, in this case, this 2 kilogram plus 5 kilogram gives us 7 kilogram. It is an equation. In this equation, students, this is the left hand side and this is the right hand side of the equation. In the equation, there always exists the left hand side and the right hand side. Whenever, students, both the left hand side and the right hand side, they are not zero, then we can say that the equation is completely defined. Okay? Clear? So according to principle of homogeneity, what you can do, you can add or subtract. बेटा ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करने वाला है. हम इसको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज नहीं कर सकते. ओके? सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बेटा वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर सिमिलर. By similar, I want to say that their dimensional formulas should be same or their units should be same. Okay? Now, let us suppose say I am saying speed plus speed. Now, since when we are adding up speed with speed, what we get? We will get speed. So the result is speed. बेटा ये बात समझ आ गई? It is the first part of the left hand side. It is the second part of the left hand side. These two parts, they are identical, or I can say that they are similar. That's why, students, this addition is possible to give me the result. And the result, it is again speed. That is, the result is again same as that of the added physical quantities. Got it, students? So in the left hand side, what we have? We have two physical quantities which are exactly similar, and if we are adding the similar physical quantities, then the result
will be the same physical quantity. Okay, now it is the right hand side. Okay, now the same approach. Let us suppose say I am saying that speed when added with unknown physical quantity, say A, we get the result which is again unknown to me. That is, speed plus unknown physical quantity gives us the result. Now clearly since the equation is completely defined. Now in this equation, in the left hand side, it is the first part, it is the second part, and it is the result. Now since, अब ध्यान से देखिए बेटा, स्पीड तो लिखा हुआ है, तो मतलब फर्स्ट पार्ट नोन है, सेकंड पार्ट अननोन था जिसको हमने ए से डिनोट किया है, दोनों के बीच में प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा, मतलब आपने दोनों को ऐड करना। ऐड करने पर अगर रिजल्ट मिल जाता है, जैसा कि यहां पे मिला हुआ है, हमने बी को रिजल्ट बोला था, तो इसका मतलब स्विस ये कैलकुलेशन एग्जिस्ट करती है। अब अगर ये कैलकुलेशन एग्जिस्ट करती है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप सिर्फ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, क्योंकि स्विस हमने यहां पे एडिशन किया है, तो यहां से हमें पता लगता है कि बेटा ये जो फिजिकल क्वांटिटी ए है, ये अगर स्पीड होती है तभी आपको रिजल्ट मिलता है। बात समझ आ गई? तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कैसे यूज किया? हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कैसे यूज किया? पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखिए बेटा। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या था हमारे पास? हमारे पास था स्पीड प्लस ए, राइट? ओके, क्लियर? अब क्योंकि इक्वेशन हमारी डिफाइंड है, तो व्हाट वी कैन से? वी कैन से दैट ए इज स्पीड। कैसे पता लगा? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके बेटा स्टेप 1 में आपने अननोन फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है। समझ आ गई बात? स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप 1 में सिर्फ आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके अननोन फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है। गॉट इट? जब फिजिकल क्वांटिटी आपकी आइडेंटिफाई हो जाए तो सेकंड स्टेप में आपने आइडेंटिफाइड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। नाउ इन द स्टेप सेकंड we can say that the dimensional formula of A, it is m0lt minus 1. That is the dimensional formula for speed. That is the dimensional formula for speed. Okay? Now, अब आ जाए दोबारा से इक्वेशन। बेटा इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड आपके पास अवेलेबल था। लेफ्ट हैंड साइड में आपने किया था स्पीड प्लस अननोन ए गिव्स यू बी। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। अब बेटा अगर लेफ्ट हैंड साइड पूरा स्पीड है तो राइट हैंड साइड भी पूरा स्पीड होगा। मतलब बेटा स्पीड के साथ अगर आपने ए को ऐड कर लिया है, हो गया है, ऐड हो चुका है तो इसका मतलब ये स्पीड था। स्पीड को स्पीड के साथ ऐड करेंगे, क्या मिलेगा आपको? स्पीड मिलेगा। बात समझ आ गई? सो अगेन now you have to switch on to the right hand side again using principle of homogeneity. Using principle of homogeneity in the left hand side, what do we get? We get B is speed. बेटा B स्पीड होगा। अब B का पता लग गया तो अब आपने सिर्फ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B इज m0lt minus 1.
Okay, it is a clear illustration in which we will write out the dimensional formulas of unknown physical quantities. तो बेटा समझ आ गया होगा ये इलस्ट्रेशन. इस इलस्ट्रेशन में हमने अननोन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं वो सीखना है. ठीक है, ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन दी थी. अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा. पहले तो 0 लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद 1 अप लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा. तो क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्म आपको दूंगा. आप उन क्वेश्चंस को नोट करें, बारी बारी उनको डिस्कस करेंगे. ओके, यहां पर था क्वेश्चन था स्पीड प्लस ए गिव्स अस बी. करना क्या था? वी हैव टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूलास ऑफ ए एंड बी. ओके, दिस वाज अ क्वेश्चन. ओके, तो स्टूडेंट्स आप इसे कॉपी करें, फटाफट कॉपी करिए. कॉपी हो चुका होगा. चलिए, तो बेटा अभी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज नोन होंगी, उनके मैं नाम लिख के दूंगा आपको. तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज के मैंने नाम लिख के दे दिए हैं जो नोन हैं, आपने हमेशा अपना कैलकुलेशन स्टार्ट वहां से करना. कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए आपने स्टार्ट कैसे लेना है? आप स्टार्ट लेंगे उन फिजिकल क्वांटिटीज से जो नोन है, और दूसरी बात जहां पर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन नजर आएगा. बात समझ आ गई? जो अननोन फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनको मैं ए बी सी डी या फिर एक्स से डिनोट करूंगा. बात समझ आ गई? ओके, now note down these questions to write the dimensional formulas of unknown physical quantities. In the first question, say force is equals to A multiplied with time plus B. The second question, say mass plus A gives you speed multiplied with time. Multiplied with B. Okay? Now the third, suppose say time minus A, it gives you B. Okay? Then the fourth, say force minus B square gives you A plus C multiplied with time. Okay? Fifth question. Work plus A square gives you B plus C divided by force. Okay? Note down these 5 questions first.
आई एम राइटिंग इट एज से B plus C divided by force. Okay? Now let me once again check that if it is clear in the video. Yes, it is clear in the video. Okay? Now sirs, let us discuss each and every question. And remember, I will give you a stepwise approach. Always use that given stepwise approach. Okay? Clear? बेटा आगे पीछे नहीं करना है, जैसे सिखा रहा हूं, जो स्टेपवाइज अप्रोच दे रहा हूं बिल्कुल वैसे करना है. ठीक है? ओके. Now in the first question first, what we have, force equals to A multiplied with time plus P. तो बेटा सबसे पहले चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. सबसे पहला काम जो करना है वो आपने ये देखना है कि बेटा नोन कहां पर है. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ फोर्स है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड नोन है. अब राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड को देख रहे हैं तो A मल्टीप्लाइड विद टाइम दिखाई दे रहा है, यहां पर A अननोन है, प्लस B दिखाई दे रहा है, B भी अननोन है, तो राइट हैंड साइड अननोन है. पहला स्टेप समझ आ गया. सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से कौन सी साइड या तो पूरी तरह नोन है या फिर कोई एक पार्ट नोन है. समझ आ गई बात. जैसे इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड नोन था. ओके. अब देखिए बेटा अगर लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी फोर्स होना चाहिए. यस और नो. अब राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है? राइट हैंड साइड में हमें दो चीजें दिखाई दे रही है. इट इज द फर्स्ट थिंग एंड इट इज द सेकंड थिंग. ओके. सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. So, this A multiplied with time, it should be force, yes or no? क्योंकि बेटा अगर लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है तो राइट हैंड साइड फोर्स होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में क्या है? फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, इट गिव्स यू फोर्स. तो इसका मतलब बेटा ये जो फर्स्ट पूरा पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट पूरा सिर्फ A या टाइम नहीं. फर्स्ट पार्ट में क्या था? A मल्टीप्लाइड विद टाइम. तो A मल्टीप्लाइड विद टाइम पूरा का पूरा फोर्स के इक्वल होगा. गॉट इट? समझ आ गई बात. सो A मल्टीप्लाइड विद टाइम इट इज फोर्स. ओके. क्योंकि यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में सीखा था कि अगर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सिमिलर हैं तभी इनका एडिशन पॉसिबल था. अब ध्यान से देखिए, दोनों का एडिशन हो रहा है और रिजल्ट में मिल रहा है फोर्स, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों फोर्स होने चाहिए. सो A मल्टीप्लाइड विद टाइम इट गिव्स अस फोर्स. सो A गिव्स अस फोर्स अपॉन टाइम. तो बेटा पहले वाले स्टेप में क्या करना है? स्टेप 1 में आपने फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है, और जितना मैं व्हाइट बोर्ड पर मेंशन कर रहा हूं इतना ही आपने अपनी आंसर शीट में मेंशन करना है. क्योंकि ये वाली जो टाइप है ये अगर आती है 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में आएगी. ये वाली टाइप आपकी 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में आएगी. ओके. अब बेटा फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई हो गई, तो फिजिकल क्वांटिटी इज आइडेंटिफाइड. व्हाट इज A? A is nothing but force divided by time. Okay. Now in the step second, what you have to do? In the step second, we have to just do the calculation. Now we are going to say that the dimensional formula of A is, बेटा फोर्स की जगह पे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें mLT माइनस 2, और टाइम की जगह पे टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T. लास्ट 2 लेक्चर्स में फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज मैंने लिख के दिए थे और आपको बोला था लर्निंग कर लेना. तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक लर्निंग नहीं की है डायमेंशनल फॉर्मूलाज की तो लर्निंग कर लें. ठीक है? क्योंकि बार बार जरूरत होगी उनकी. अब बेटा इसको सॉल्व कर ले. नाउ वी कैन से दैट इट गिव्स अस, ये T है इसको ऊपर ले जाए, यहां पे T का पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा. सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A कैन बी रिटन एज mLT माइनस 3. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इज रिटन एज mLT माइनस 3. गॉट इट? समझ आ गई बात. साथ साथ कॉपी करते जाए स्टूडेंट्स. आज काम ज्यादा है और जगह थोड़ी कम है तो मुझे मिटाना पड़ेगा. डन? ओके. नाउ द नेक्स्ट पार्ट.
देखिए राइट हैंड साइड में दोबारा है, फर्स्ट पार्ट वॉज ए मल्टीप्लाई विद टाइम, इट इज एडेड विद द सेकेंड पार्ट विच इज बी एंड द रिजल्ट इज फोर्स. सो सिंस दीज टू पार्ट्स इंडिविजुअली दे शुड बी फोर्स as per principle of homogeneity. Okay, so using principle of homogeneity we can say that this B is force. तो यहां पे कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, जैसे पहले वाले में इन्वॉल्व था, A मल्टीप्लाई विद टाइम was force, यहां पर तो B सीधा फोर्स आ गया. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B is, बेटा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लें, MLT माइनस, फिनिश. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B दोनों मिल गए आपको. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश्ड. ओके, कॉपी कर ले, उसको मिटा रहा हूं. डन. नाउ सर द सेकंड क्वेश्चन. मास प्लस ए गिव्स यू से स्पीड मल्टीप्लाइड विद बी. अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास में? मास प्लस ए. मास तो पता है, मास लिखा हुआ है, लेकिन इस मास के साथ हमने ए को ऐड किया है. ये ए अननोन है, ठीक है. ओके, और राइट हैंड साइड को देखते हैं. तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ? स्पीड मल्टीप्लाइड विद बी. अब बी तो कुछ भी हो सकता है, तो मतलब राइट हैंड साइड तो कंप्लीटली अननोन है. अब तो प्रॉब्लम हो गई. इससे पहले वाले क्वेश्चन में कम से कम लेफ्ट हैंड साइड तो पता थी, अभी तो दोनों ही साइड्स नहीं पता मुझे. लेकिन स्टूडेंट्स, आपको याद हो मैंने कहा था आपने स्टार्ट हमेशा वहां से करना है जहां पर कोई एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, इन दोनों में से कोई भी एक नोन हो. चलिए पूरा नोन ना हो, कोई एक पार्ट तो नोन हो. अब ध्यान से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए. लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए. मास प्लस ए, क्या लिखा है बेटा? मास प्लस ए. मास के साथ अगर आप ए को ऐड करते हैं और रिजल्ट अगर आपको मिल गया, क्योंकि इक्वेशन तो डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड साइड भी लिखी हुई है और राइट हैंड साइड भी लिखी हुई है, तो इक्वेशन तो डिफाइंड है. तो बेटा मास क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट हो गया. ए क्या हो गया? सेकंड पार्ट हो गया. और ये हमारा रिजल्ट हो गया. तो बेटा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को जब आप ऐड करें और आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो एडिशन दोनों पार्ट्स का पॉसिबल तब था जब दोनों सिमिलर थे. तो इसका मतलब बेटा मास को अगर आप ए के साथ ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए? आपको मास मिलना चाहिए. यस और नो? मास को अगर आप ए के साथ ऐड करेंगे क्या मिलेगा? मास मिलेगा. तो इसका मतलब ए क्या हो गया? सो ए इज मास. क्योंकि इसमें सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज अगर होती तभी तो एडिशन पॉसिबल था. अब एडिशन तो कर दिया, रिजल्ट मिल गया, तो इसका मतलब सर ये ए और मास दोनों सिमिलर है. दोनों सिमिलर है तो मतलब ए मास हो गया. नाउ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए is ML0T0. That is, here to just write out the dimension formula for mass. Got it? Now, why I had written this equation? देखिए, mass plus A gives you mass. तो बेटा mass plus A की जगह पे हम mass रख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि speed मल्टीप्लाइड विद बी. स्पीड को आपने बी से मल्टीप्लाई किया हुआ है. राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड में स्पीड इज मल्टीप्लाइड विद बी. ओके बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे इक्वल होंगे. अब मास प्लस ए की जगह पे अगर आप इसको उठा के लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये मास हो जाएगा. ठीक है बेटा, क्योंकि इक्वेशन था, इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड होता. सो स्पीड इनटू बी गिव्स यू मास. अब बेटा बी को आपने सॉल्व करना है. बी इज रिटन एज मास डिवाइडेड बाय स्पीड. बी को कैसे लिखेंगे आप? बी इज रिटन एज मास डिवाइडेड बाय स्पीड. ओके, सो सिंस नाउ यू हैव टू राइट आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी. द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी इज, मास की जगह पे मास का डायमेंशन फॉर्मूला ML0T0, स्पीड की जगह पे स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला M0LT-1. ओके, समझ आ गई बात? गॉट इट? अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं. कॉपी कर ले इसको, आप कॉपी कर लिया?
Now, the dimensional formula of B is, देखिए m रेज़ टू पावर 1 m रेज़ टू पावर 0, तो पूरा हो जाएगा m रेज़ टू पावर 1 l रेज़ टू पावर 0 और डिनोमिनेटर में l रेज़ टू पावर 1 है, ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा तो l रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। न्यूमरेटर में t रेज़ टू पावर 0 है, डिनोमिनेटर t रेज़ टू पावर -1 है, तो t रेज़ टू पावर -1 ऊपर आएगा, t रेज़ टू पावर +1 हो जाएगा। सिंपली ओके, जल्दी से कॉपी करें। शायद लगता है ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे, मैं एक बार दोबारा कर रहा हूं। Now B multiplied with speed, it gave us mass, so this B is nothing but mass divided by speed. The dimensional formula of B is mL0T0 and speed it was m0 lt minus 1. On solving them, it is ml minus 1 t raised to power 1. Okay, done, copied. Now let us start up with the third question. Now the third question is time minus a gives you b. अब ध्यान से देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड इज अननोन, बट इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टाइम माइनस a. No doubt in the left hand side there is a unknown a, but I will make a start from the left hand side. Why? Because in the left hand side there exists the subtraction in this case. तो बेटा स्टार्ट कहां से लेना है? स्टार्ट वहां से लेना है जहां पे आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन नजर आए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। बेटा फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, मिल चुका है क्योंकि वहां पे बी लिखा है, तो बी रिजल्ट है। क्लियर? तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये तीनों सेम होने चाहिए। ठीक है, टाइम फर्स्ट टाइम था, सेकंड ए है, तो दोनों अगर सिमिलर होंगे, सेम होंगे, तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल था। सब्ट्रैक्शन कर दिया तो जो रिजल्ट आएगा वो भी वैसा ही आएगा। ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग अप विद लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इन दिस लेफ्ट हैंड साइड what we have in the left hand side, in the left hand side we have time minus a. तो बेटा टाइम से अगर आप a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये टाइम माइनस a क्या देगा? ये टाइम माइनस a आपको टाइम देगा। गॉट इट? ओके, तो टाइम से a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टाइम मिल रहा है, तो a क्या होना चाहिए? बस a is टाइम। यहां पे आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज किया। सो ए आइडेंटिफाई होने के बाद, अब ए आइडेंटिफाई हो गया कि ए टाइम है, सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज m0 l0t। बात समझ आ गई? अब बेटा देखिए, राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड में आपको फिजिकल क्वांटिटी बी नजर आ रही है। ओके, सिर्फ अकेली बी नजर आ रही है। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे इक्वल होने चाहिए। अब बेटा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड टाइम में से ए को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला आपको? टाइम मिला। तो टाइम माइनस ए की जगह पे आप टाइम यहां पे प्लेस कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? दिस बी इज टाइम। तो बी क्या होगा? टाइम होगा। नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इज m0 l0t। फिनिश्ड। कॉपी इट। कॉपी कर लें।
Done? Now, the next question. That is the question number 4th. In the question number 4th, what do we have? We have force minus b square. It gives us a plus c multiplied with time. अब तो ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड को देखिए। क्या लेफ्ट हैंड साइड नोन है? हाँ जी, पता है। कैसे पता है? क्योंकि फोर्स में से बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसका मतलब बेटा बी स्क्वायर क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। क्लियर? क्या राइट हैंड साइड पता है? अब राइट हैंड साइड नहीं पता है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में ए अननोन है और सी इज मल्टीप्लाइड विद टाइम। यहां पे सी भी अननोन है। अगर सी नोन होता तो हम कहते कि जो ये पूरा था वो ये होता, तो इसलिए राइट हैंड साइड पूरी अननोन है। तो स्टूडेंट्स कहां से स्टार्ट करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे नोन से। ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट है, राइट हैंड साइड का सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट है और लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड पार्ट। सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो सब्ट्रैक्शन हो रही है तो इट मींस दोनों सिमिलर होने चाहिए। अब अगर फर्स्ट फोर्स है तो सेकंड क्या होगा? फोर्स होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आई एम स्टार्टिंग अप with left hand side. Now this force minus b square, it will give us force. बेटा फोर्स में से b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। देखिए फर्स्ट क्या था? फोर्स। सेकंड क्या है? b स्क्वायर। ये मत बोलिए कि सेकंड b है, सेकंड क्या है? b स्क्वायर है। गॉट इट? फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम होने चाहिए, तो b स्क्वायर फोर्स होगा। समझ आ गई बात? ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट दिस b स्क्वायर इज फोर्स। इतना ही लिखना है सिर्फ आंसर शीट्स पे, आंसर शीट्स पे इतना ही लिखना है। तो बेटा b क्या हो गया? b को आइडेंटिफाई करना था। b इज रिटन एज फोर्स रेज़ टू द पावर 1/2। b का स्क्वायर था, उधर लेके जाना है स्क्वायर को, तो रूट लगाना पड़ेगा। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इज mlt minus 2 होल पावर 1/2। गॉट इट? फोर्स का पार कितना था? 1/2, तो होल पावर 1/2। अभी सॉल्व कर लें इसको। सो दिस गिव्स अस m रेज़ टू पावर 1/2। m का पावर 1 है, मल्टीप्लाइड विद हाफ, इट विल गिव यू हाफ। l का पावर 1 था, मल्टीप्लाइड विद हाफ, अगेन इट विल गिव यू हाफ। t रेज़ टू पावर -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा t रेज़ टू पावर -1 आएगा। सो सिंस इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b, याद रखिए बी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिख रहे थे, बी का लिख रहे थे, क्योंकि बी अननोन है। समझ आ गई बात? कॉपी करें इसको, जल्दी से कॉपी करें। डन? ओके, चलिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का तो पता लग गया। लेफ्ट हैंड साइड पूरा क्या हो गया? फोर्स हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। नाउ वी कैन से दैट a प्लस c मल्टीप्लाइड विद टाइम, इट विल गिव अस फोर्स। यस और नो? क्योंकि फोर्स में से b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया था, तो क्या मिला था? फोर्स मिला था। तो इस पूरे की जगह पे सिर्फ फोर्स लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये पूरा सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? a। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? अकेला c या फिर अकेला टाइम नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? c मल्टीप्लाइड विद टाइम। तो c मल्टीप्लाइड विद टाइम इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अगर आप ऐड कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिला फोर्स, तो इसका फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे? फोर्स। सो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन से दैट a इज फोर्स। is force। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई होगी। नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A is mlt minus 2। mlt minus 2। गॉट इट? तो सिंस इन्हीं 5 क्वेश्चंस के अंदर बेटा ये थर्ड क्वेश्चन था, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप होती है। बात समझ आ गई? और जब हम इस पे आते हैं
तो ये इससे एक स्टेप ज्यादा होती है। और अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो ये इससे एक स्टेप और ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने एक ऐसा कलेक्शन लिया था यहाँ पे 5 डिफरेंट क्वेश्चंस का, जिसके अंदर आपको सारे लेवल्स में दिखा सकूं। ठीक है, करना क्या था, अपने कॉन्सेप्ट्स को ढंग से अगर हमने लर्न किया हुआ है तो फ्रेंड्स हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना है। ये बात आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दी थी। ओके, तब मैंने आपसे लास्ट लेक्चर के अंदर प्रॉमिस किया था आपको सिखाऊंगा कि फिजिक्स क्या होता है और कैसे करना होता है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे और आगे चलेंगे, फिजिक्स क्या होता है, कैसे करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, रेगुलर बेसिस पे लर्निंग करनी होती है, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपने नोट्स बना लिए, लर्निंग आपने कर ली, आपका फिजिक्स का काम हो गया, नहीं, ये तो सिर्फ 30% हुआ है बेटा। जो स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैं डिलीवर कर रहा हूं कि कैसे करना है, पहले कौन सा स्टेप करना है, उसके बाद कौन सा स्टेप करना है, किस स्टेप में क्या करना है, वो सारी स्किल्स हैं। तो वो सारी लर्न करने के बाद जब आप अपने कॉन्सेप्ट के साथ इंप्लीमेंट करते हैं उन दोनों को, अगर आपने दोनों को एक दूसरे के साथ इंप्लीमेंट कर लिया, ओके, अपनी आंसर शीट पे डाल दिया, तो फुल मार्क्स आएंगे, तो मतलब फिजिक्स हो गई। और अगर आप ये सोचते हैं कि चलो वीडियो आज आया है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, चलो थोड़ा फास्ट रनिंग मोड में, जैसे वो भगा के देखते हैं ना, वो देख लिया, हो जाएगा, समझ आ रहा है, सिंपल है, कल कर लेंगे, ये बेटा कल नहीं आने वाला। ठीक है, ये कल नहीं आएगा, जो करना है आज करना है। तो आज अगर वीडियो आपको आप तक पहुंच रहा है तो आपने आज उसके नोट्स बनाने हैं और आज ही लर्निंग खत्म करनी है। याद है मैंने आपको बोला था कि स्टूडेंट्स 2 सिटिंग्स चाहिए होती हैं, 2 सिटिंग्स कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग, एक के बाद एक। पहली सिटिंग 45 मिनट की, दूसरी सिटिंग भी 45 मिनट की। पहले वाली सिटिंग में लर्निंग और दूसरे वाली सिटिंग के अंदर जो लर्न किया है उसको इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ओके, तो चलिए ये का तो पता लग गया। अब बारी आ गई, राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में 2 अननोन थे, a प्लस सी मल्टीप्लाइड विद टाइम, a प्लस सी मल्टीप्लाइड विद टाइम। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या होगा, c मल्टीप्लाइड विद टाइम। ये क्या होगा, इट इज अगेन इक्वल्स टू फोर्स, यस और नो। फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड किया था, क्या मिला था, फोर्स। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्या होने चाहिए, फोर्स। ओके, ए का सॉल्व हो गया, अब सेकंड की बारी आ गई, तो c इंटू टाइम क्या होना चाहिए, फोर्स। सो c मल्टीप्लाइड विद टाइम क्या है, फोर्स। सो c क्या है, सो c इज फोर्स अपॉन टाइम। अगर आप वर्ड नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधा इक्वल टू का साइन लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, समझ आ गई बात। तो बेटा यहां पे इस वाले स्टेप में c आइडेंटिफाई हो गया। अगर एक बार c आइडेंटिफाई हो गया, नोट करें क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं इसको, नोट कर ले जल्दी से। तो स्टूडेंट्स हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c, इट विल बी, फोर्स का लिखते हैं mlt माइनस 2, टाइम का लिखते हैं सिंपली t। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। ये देगा mlt माइनस 3, क्योंकि t रेज़ टू पावर 1 डिनोमिनेटर में, ऊपर लेके जाएंगे t रेज़ टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, -2 पहले से था, सो -2 और -1 -3 हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फोर्थ। जल्दी से नोट कर ले आप इसको। डन। ओके, चलिए बेटा now since question of 5th, question number 5th, work plus a square gives you b plus c divided by force। चलिए जल्दी से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड को देखिए, कौन से साइड में कौन सा पार्ट मालूम है। मुझे लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वर्क प्लस ए स्क्वायर है, तो वर्क पता है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, बी अननोन हो गया और ये लिखा हुआ है सी अपॉन फोर्स। सिर्फ फोर्स को नहीं देखना है, पूरे को देखना है, पूरे को देखना है। ठीक है, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है,
वर्क प्लस ए स्क्वायर। बेटा वर्क के साथ ए स्क्वायर को अगर ऐड किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा? वर्क। गॉट इट? क्योंकि दोनों सिमिलर थे तभी तो रिजल्ट मिला था। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर वर्क हो जाएगा। अब ए स्क्वायर अगर वर्क हो गया तो ए क्या हो जाएगा? ए इज वर्क रेज़ टू पावर 1/2, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, उधर लेके जाएंगे स्क्वायर को हाफ करना पड़ेगा। नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, इट इज वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लें, ml2t minus 2, द पावर इज हाफ। अब सॉल्व कर ले उसको। So the dimensional formula of A is m raised to power 1/2 L raised to power 2 multiplied with 1/2 1 and T raised to power -2। ठीक है? तो बेटा चीजें नई हैं, नई चीजों को नए एटीट्यूड के साथ, ठीक है, थोड़ा मैच्योरिटी लेके आनी होती है अपने अंदर। ओके, तो ये बदलना पड़ता है, हर स्टैंडर्ड में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो बदलिए, और ये करेक्ट अप्रोच है। समझ आ गई बात? अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के दूंगा, कम से कम 5 क्वेश्चंस लिख के दूंगा, उन्हें प्रैक्टिस करना। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब बात करते हैं राइट हैंड साइड का। देखिए वर्क प्लस ए स्क्वायर क्या देगा? वर्क देगा, तो वर्क प्लस ए स्क्वायर की जगह पे वर्क लिख लेंगे आप। ठीक है, ओके, तो व्हाट वी कैन से, अब राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। So B plus C divided by force, what was it? It was work. अब राइट हैंड साइड का दोबारा देखिए बेटा, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ये पूरा सेकंड है, इस पूरे को सेकंड बोलना है, सिर्फ C को सेकंड नहीं बोलना है, या सिर्फ फोर्स को सेकंड नहीं बोलना है। This entire C by force is the second part. Okay. Now first plus second gives you work. So since this B is work, if B is work, then the dimensional formula of B is ml2t minus 2. The dimensional formula of B is ml2t minus 2. Identify हो गया, लिख लिया dimensional formula। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। So C divided by force, C divided by force, it gives you work. C divided by force, it gives you work. So what is C? The C is work multiplied with force. जैसे बेटा लोअर क्लासेस में इक्वेशन को सॉल्व करते थे, C by force is work, so C is, C अननोन है, उधर लेके जाएंगे फोर्स को। समझ आ गई बात? ओके, तो बेटा द डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C is, पहले वर्क का लिखें ml2t minus 2, फिर मल्टीप्लाइड विद फोर्स का लिखें mlt minus 2, और सॉल्व करना है, और सॉल्व करें। कॉपी कर लें जल्दी से, इसको मिटाना है मुझे। डन? So the dimensional formula of C is, बेटा वर्क का लिखा था हमने ml2t minus 2, it is to be multiplied with, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था mlt minus 2। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, m को m के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C is m raised to the power 2, m raised to power 1 multiplied with m raised to power 1, so total becomes m raised to power 1 plus 1 2, l raised to power is 2 and l raised to power is 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, so l raised to power 3, t raised to power minus 2, t raised to power minus 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर फिर ऐड हो जाएगी, -2 and -2 -4। It is the dimensional formula for C. Got it? Now I think so since all these 5 questions which I had discussed to you, आपने क्या करना है? आपने बेटा एक रफ नोटबुक लेनी है, वो आपकी प्रैक्टिस नोटबुक होगी, वो भी बिल्कुल फेयर नोटबुक खरीद के बना लें आप, और उसमें डेली का काम प्रैक्टिस करें। पहले जो यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ, पहले उसी को प्रैक्टिस करें, उसके साथ जो होमवर्क मिलेगा उसको भी करना है। जो डाउट्स आएंगे कमेंट सेक्शन में जाना है,
मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर जो भी आपका डाउट है, तो वो मुझ तक पहुंच जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस तब करना जब ये पहले 5 क्वेश्चंस आप ढंग से कर पा रहे हैं। तो पहले ये जो 5 क्वेश्चंस है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, इनको उसी सीक्वेंशियल अप्रोच के साथ करना है जैसे मैंने सिखाया। ओके, write the dimensional formulas of unknown physical quantities। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा मेरे को ज्यादा लग रहा है कि शायद ज्यादा ना हो जाए, तो एक काम करते हैं, ये होमवर्क आज के लिए रहने देता हूं। आज का होमवर्क आपके लिए सिर्फ इतना है कि जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, इनको दोबारा से खुद से करना है, सिर्फ उसी सॉल्व मटेरियल को नहीं देखना है। याद रखिए मैंने आपको समझाया था, पहले लर्निंग होगा, लर्निंग के बाद फिर आपने इंप्लीमेंट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी स्टूडेंट्स हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, सारी टाइप को, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे देने वाला था ये अभी नहीं दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में फिर वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन ये आज का होमवर्क जो मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं, तो इनको करना है, ठीक है। और याद रखें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये काफी गलत बात है। तो लाइक करिए वीडियोस को और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके सर, दिस इज ऑल फॉर टुडे।